Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, here we completed two sessions of chapter number 4, solids, liquids and gases. Today is session number 3. In today's session I am going to explain you about three states of matter. Three states of matter कौन से है? Solids, liquids and gases. Here are the arrangements of particles of solids, liquids and gases, as I explained you in session number 2, right? If you remember and if you watch that session number 2, then you will getting to know these are the arrangements of solids, liquids and gases. But before I start explaining in detail about solids, liquids and gases, I just want you to revise about last two sessions. In last two sessions, what I explained you? Vocabulary words, meanings and all about matter. So let's begin that. Vocabulary words. Number 1, matter. M-A-T-T-E-R, matter. Number 2, solid. S-O-L-I-D, solid. Number 3, liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. Number 4, gases. G-A-S-E-S, gases. Number 5, substance. S-U-B-S-T-A-N-C-E, substance. Number 6, definite. D-E-F-I-N-I-T-E, definite. Number 7, solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. Number 8, dissolve. D-I-S-S-O-L-V-E, dissolve. Number 9, melt. M-E-L-T, melt. Number 10, solvent. S-O-L-V-E-N-T, solvent. Number 11, vapor. V-A-P-O-U-R, vapor. Number 12, container. C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. Number 13, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S, particles. Number 14, occupy. O-C-C-U-P-Y, occupy. Number 15, port. P-O-U-R-E-D, port. Let's pronunciate all the vocabularies once again. Number 1, matter. Number 2, solid. Number 3, liquid. Number 4, gases. Number 5, substance. Number 6, definite. Number 7, solution. Number 8, dissolve. Number 9, melt. And number 10, solvent. Number 11, vapor. Number 12, container. Number 13, particles. Number 14, occupy. And number 15, port. Now meanings. Number 1, vapor. A mass of very small parts of liquid in the air. मतलब एयर के अंदर जो लिक्विड का पोर्शन होता है उसको हम एयर के अंदर लिक्विड का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर. फॉर एग्जाम्पल स्टीम. स्टीम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेपर. नाउ नंबर 2, सॉल्यूट. अ डिजॉल्व्ड मैटर. मतलब कोई भी वाटर सब्सटेंस है हम उसमें कोई कुछ भी डालेंगे इट मीन्स दैट इज सॉल्यूट. नाउ नंबर 3, सॉल्वेंट. A substance, especially a liquid that can dissolve another substance. जो लिक्विड में हम डालेंगे वो सॉल्यूट था, जो लिक्विड में डलेगा वो लिक्विड जो होता है दैट इज सॉल्वेंट. हम उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. नाउ सॉल्यूशन. A liquid in which something is dissolved.
मतलब जो कोई भी चीज़ हमने लिक्विड में डाली और वो लिक्विड दोनों को मिला के जो पानी में डिज़ोल्व हो चुका है और एक सॉल्यूशन बना है, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट, solvent and solution. Now last one, pour. To make liquid or other substance flow steadily out of or into a container. pour मतलब कोई भी चीज़ को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना, that is pour. Now kids, here we completed our vocabulary words and meanings. Now let's begin about matter. Things around us exist in three forms. Kids, हमारे आजू बाजू में जो कोई भी चीज़ है, whatever things is around us, that is only in three forms. वो तीन forms में ही है, solids, liquids and gases. इसके अलावा हमें कोई भी चौथा फॉर्म मिलेगा नहीं. Let us learn about these forms and their properties. ये चैप्टर में हम इसके फॉर्म्स भी लर्न करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज भी लर्न करेंगे. बट यहाँ पे अभी ये सेशन में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन डेप्थ. ओके, नाउ मैटर. देयर आर डिफरेंट थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, rivers and air around us. These things take up space and have weight. ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी एग्जाम्पल्स में मैंने बोली, ये एक तो स्पेस भी कर लेते हैं, मतलब उसको स्पेस भी चाहिए और उसको अपना वेट भी होता है. इवन एयर को हम फील कर सकते हैं, राइट? देख सकते नहीं है बट उसका भी वेट होता है. माउंटेन्स को जगह भी चाहिए और उसका वेट भी होता है. सेम एनिमल्स का भी होता है, सेम प्लांट्स का भी होता है. क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें कितने फॉर्म में है? थ्री फॉर्म्स में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. नाउ any substance that has mass and occupies space is called matter. इसका मतलब ये प्रूव होता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग हो जिसके पास अपना मास, मतलब उसके पास अपना वेट, उसको ऑक्यूपाई करने की जगह, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी होती है, उसका मतलब वो क्या है? मैटर. एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़, ये सपोज बेंचेस है, आपके घर में टेबल है, सोफ़ा है, तो वो उसके पास अपना वेट भी है और अपनी जगह भी वो कंज्यूम करता है, राइट? तो वो क्या हुआ? वो मैटर हुआ. क्लियर? नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स. कोई भी मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकलों को इकट्ठा करके ही बना होता है. ये पार्टिकल्स, हियर आई एम शोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स. ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं और ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं. आपको इजीली दिखाई दे रहे हैं. अब मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था ये क्या है, डिफरेंसेस और ये सब कुछ. यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स में बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रही है? नो, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है. कोई भी स्पेस नहीं है, इसका मतलब हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं है. ये बोर्ड है, ये हार्ड है. क्यों हार्ड है? बिकॉज ये सॉलिड्स है, सॉलिड है. सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही एकदम से साथ में होते हैं, तो हम उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं है. जैसा कि हुआ चेंजेस, ये बैंड हुआ नहीं हुआ, इसमें हमने हाथ डालेगा नहीं डाल सकते, बिकॉज ये सॉलिड है. इसके पार्टिकल्स है वो एकदम साथ साथ होते हैं, इट इज़ टूगेदर, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. हमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स को देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है. देखो, ये बोर्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ये कौन सा मैटर हुआ? सॉलिड हुआ, राइट?
इफ सपोज मैं वाटर बोलूँगी तो वाटर किसका एग्जाम्पल हुआ? लिक्विड का, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग अलग होते हैं। हम कोई भी कंटेनर में कोई भी लिक्विड को डालेंगे तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे कि हम पानी वाटर को बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल में भी आ जाएगा, हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास में भी आ जाएगा, बॉल में डालेंगे तो वो बॉल का शेप ले लेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स, तो वो किस में कंसिडर होगा? लिक्विड में। फिर बात आती है गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत ही स्प्रेड हुए होते हैं। उस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये गैसेस फॉर्म में है। क्लियर किड्स? आपको अरेंजमेंट्स थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई? सो हियर 3 states of matter. 3 states of matter. The 3 states of matter are solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. Now number 1, solids. Solids are kids, here I explained revision of this revision of last sessions. Okay, now I am going to begin about this topic 3 states of matter. Okay, उसमें पहला वाला है solids. नंबर 1 कौन सा है? solids. तो पहले let's begin that. Number 1, solids. Solids are substances in which the particles are very closed packed. यहाँ पे सॉलिड्स ऐसी है जिसमें यहाँ के पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, मतलब इसके बीच में कोई भी जगह है नहीं। राइट नाउ आपके हाथ में मोबाइल है तो वो भी सॉलिड फॉर्म में हुआ। आपको कहीं पे भी कुछ भी स्पेस दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई देगा। फिर आपके हाथ में पेंसिल है तो वो भी सॉलिड फॉर्म में है, इसमें कोई भी चेंजेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो किस में आएगा? सॉलिड्स, बिकॉज उसके पार्टिकल्स बहुत ही साथ साथ में क्लोज्ड होते हैं, उस वजह से हम उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं। कोई ऐसे भी सॉलिड्स फॉर्म है जिसको हम बैंड कर सकते हैं, उसके अलग अलग शेप्स भी बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। Hence, most solids have a definite shape that cannot be changed easily. मतलब मोस्टली सारे के सारे सॉलिड्स के पास अपनी खुद की शेप होती है जिसको हम चेंज कर सकते नहीं है। जैसे कि मैंने बोला लिक्विड जैसे मिल्क है, मिल्क को हम कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर का शेप ले लेगी, बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगी। बट सॉलिड में ऐसा होता है? नो, बिकॉज सॉलिड हैव ए डिफाइनाइट शेप। सॉलिड के पास अपना प्रॉपर डिफाइनाइट शेप होता है जिसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं है। आप कोई भी सॉलिड का एग्जांपल ले लो, आपके आजू बाजू में कुछ भी, जैसे मिरर, सोफा, चेयर्स, बेंचेस, टेबल, रेफ्रिजरेटर, स्पेक्स, एवरीथिंग विच इज सॉलिड, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और सॉलिड्स हैव ए डिफाइनाइट शेप ऑल्सो। चेयर्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, इवन प्लांट्स एंड स्टोन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। ये किसके एग्जाम्पल्स थे? सॉलिड्स के। वंस अगेन आई एम रिपीट, चेयर्स, इरेजर्स, pencils, plants and stones are the examples of solids. इसके अलावा भी मैंने अभी बोला वो भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एसी, टेबल, कुछ भी आपके आजू बाजू में जो सॉलिड हो जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते तो वो हमें किस में कंसिडर करेंगे? सॉलिड्स में। नाउ हाउएवर some solids can change their shape or can be bent or broken. However, मतलब कोई भी ऐसे थोड़े थोड़े सॉलिड्स है जिसके हम शेप को चेंज भी कर सकते हैं, उसको बैंड भी कर सकते हैं और उसको ब्रोक मतलब उसको तोड़ भी सकते हैं।
सॉलिड तो सॉलिड होता है, बट कोई कोई एकदम अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो किसी किसी को हम बेंड कर सकते हैं, मतलब वाड़ी सकिए આપણે, किसी किसी को हम तोड़ भी सकते हैं, और किसी किसी को हम शेप भी दे सकते हैं। शेप देने वाला कौन सा आएगा कि आप उसके साथ खेलते भी हो? वैशाली मैम ने आपको सिखाया था, कौन सा सॉलिड फॉर्म में होता है और उसके शेप्स भी आप बनाते हो, याद आ रहा है आपको? आप वो बकेट्स बना के लाए थे, फ्लावर बकेट और ये सब कुछ कलर वाला, जो है तो सॉलिड फॉर्म में, बट उसके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी बनाते हो। यस, फॉर एग्जाम्पल क्ले है, वो सॉलिड ही है, बट उसके हम शेप्स डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। क्ले इज अ सॉलिड दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स यूजिंग हैंड्स। क्ले एक सॉलिड ही है, बट हम हमारे हैंड्स का यूज़ करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स भी उसमें से बना सकते हैं। ये तो हुआ, राइट। फिर बात आती है ब्रोक। मिरर है, मिरर तो मिरर है, कोई भी बॉल है कांच का, तो उसका क्या है कि वो है तो सॉलिड फॉर्म में, बट नीचे गिरेगा या तो फिर उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रेशर आएगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, राइट। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉलिड है बट उसको हम बेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टिक होती है, स्टील की स्केल होती है जिससे हम खेलते हैं और उसको बेंड भी कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो होती तो सॉलिड फॉर्म में ही है। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड ही होते हैं, बट उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसमें ये वेरिएशंस ला सकते हैं। आई होप सो कि kids, are you able to understand about solids? Once again I'm reading that whole paragraph, okay? Keep your minds open. Solids are substances in which the particles are closely packed. Hence most solids have a definite shape. Most solids have a definite shape and cannot be changed easily. Easily वो अपने shape को change करते नहीं है। Chairs, erasers, pencils, plants and stones are the examples of solids. However, some solids can change their shape or can be bent or can be broken. For example, clay. Clay is a solid that can be molded into different shapes using hands. Clear, kids? Now, liquids. वो है number 2. Liquids are substances in which the particles are loosely packed. मतलब जहाँ पे सॉलिड में क्लोजली पैक्ड थे तो यहाँ पे लूजली पैक्ड है, मतलब थोड़े से उससे छूटे छूटे हैं, अलग अलग होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड नहीं होते, बीच बीच में स्पेस होती है। उस वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने जैसे बोला ना कि वाटर है, लिक्विड है, वो इजीली किसी का भी शेप ले सकता है, तो उसमें उसके पार्टिकल्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। उस वजह से क्या होता है? उस वजह से उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। Unlike solids, liquids have no definite shape. लिक्विड्स के पास अपना कोई भी डिफाइनाइट प्रॉपर शेप है नहीं। लिक्विड्स हैव नो डिफाइनाइट शेप। अगेन, लिक्विड्स हैव नो डिफाइनाइट शेप। किड्स, हम कोई भी बकेट में हम पानी टैप में से लाते तो उसने बकेट का शेप लिया है, ऊपर से पानी टैंक में से आ रहा है तो वो टैंक के शेप में है। कोई भी टम्बलर में हम पानी लेंगे तो पानी टम्बलर में का भी शेप आ जाएगा। हम कोई भी ग्लास में डालेंगे तो कोई भी ग्लास का शेप भी आ जाएगा। एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड जैसे मिल्क, जूस, वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, ये सारे के सारे किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। किस में आते हैं? लिक्विड। इवन आवर सलाइवा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ
लिक्विड। सलाइवा मीन्स हमारा मुंह के अंदर जो थूक होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सलाइवा। दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। They take the shape of the container into which they are poured। हम कोई भी कंटेनर में उसको डालेंगे तो लिक्विड उसी का शेप ले लेगा। आपको पता है किड्स, हम कोई भी आइस प्लेट होती है जिसमें हम वाटर डालने से आइस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं, राइट। तो जब हम उस प्लेट में वाटर को डालेंगे तो वो उसका कंटेनर का शेप ले लेगी, बट वो जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा और आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो वो जो आइस है वो किसका एग्जाम्पल है? वो सॉलिड का है। किसका है? सॉलिड का। जब हमने पानी रखा था तो वो किसका एग्जाम्पल था? वो लिक्विड का था। जब वो वाटर में से आइस में कन्वर्ट हो गया तब वो किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉलिड का। जब वो आइस अगेन मेल्ट हो जाएगा तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लिक्विड का। ये इसी चैप्टर में आगे आपको समझ आएगा, ओके। तो अभी आप इतना ही क्लियर करो। वाटर, मिल्क, juice and even oil kids are the examples of liquids। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? लिक्विड्स के। आपके दिमाग में और भी एग्जाम्पल्स आते होंगे तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड, राइट डाउन समथिंग इन योर CW। दीदी से शायद कोई भी छूट गया है, आपके दिमाग बहुत स्मार्ट है, तो यू कैन राइट डाउन योर ओन एग्जाम्पल्स ऑल्सो। बट once I just want to tell you, just confirm with your mommy या डैड कि आप अपनी मम्मा से और डैडी से कंफर्म कर लोगे कि ये सही एग्जाम्पल है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में से किसी में से, ओके। नाउ once again I am reading about liquids। Liquids are substances in which the particles are loosely packed। मतलब loosely packed होते हैं, वो एकदम से closely packed नहीं होते हैं। Unlike solids, liquids have no definite shapes। लिक्विड के पास अपनी definite shape नहीं है। They take the shape of the container into which they are poured। हम एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में उसमें हम डालते हैं, मतलब pour करते हैं, तो वो अपने आप ही उसी शेप में चला जाता है। Now water, milk, juice and oil are examples of liquids। Understand kids? Now I'm going to explain you about gases। Third one, gases are substances in which the particles are very loosely packed। यहाँ पे क्या था? closely packed। यहाँ पे था loosely packed। यहाँ पे है very loosely packed, मतलब इससे भी बहुत ही लूज में होता है, राइट। इसीलिए हम एयर में, अभी हम कहाँ पे रह रहे हैं? एयर के बीच में ही रह रहे हैं, मतलब वो गैस है तो हम उसके बीच में ही खड़े हैं ना, बिकॉज वो लूजली पैक्ड है, हमें इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। They also have no definite shape। इसके पास भी अपनी डिफाइनाइट शेप नहीं होती है। इस रूम में इस शेप की हो जाएगी, बाहर लॉबी में लॉबी शेप हो जाएगा, हॉल में हॉल शेप हो जाएगा, बाहर एटमॉस्फेयर बना है बाहर का तो उसमें उस शेप की एयर हो जाती है, तो उसके पास भी अपनी शेप नहीं होती है। They also have no definite shape। Unlike liquids, they occupy all the available space। मतलब ये जो गैसेस है ना, वो सारी की सारी स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑक्यूपाई मतलब जो ये पूरा का पूरा रूम है आपका भी, यहाँ पे भी, तो वहाँ पे पूरे रूम में एयर है, और पूरे रूम में एयर है इसीलिए हम इजीली ब्रीथ कर रहे हैं, राइट। तो उसने पूरे के पूरे रूम की स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। ऑक्यूपाई कर ली मतलब बना ली, मतलब हम सपोज
बोलते हैं ना कि ऑक्यूपाई करना मतलब ले लेना, उसने पूरी स्पेस को कवर कर ली, राइट। तो ये है एयर, मतलब दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जहाँ पे भी उसको जगह मिलती है वो उसमें कवर हो जाती है। नाउ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है? गैसेस के। इसमें बहुत सारे गैसेस आ जाते हैं, डिफरेंट गैसेस होते हैं, जैसे कि एर्गोन, मीथिल, नाइथिल, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको आगे के ग्रेड में आएंगे। आपको देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस, आपको बेसिक याद रहे तो दैट इज ओके। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। Once again I am reading all the things about gases. Gases are substances in which particles are very loosely packed. Particles are very loosely packed. They also have no definite shape. उसके पास भी अपनी definite shape नहीं है. Unlike liquids, they occupy all the available space. मतलब कोई भी स्पेस को वो कवर इजीली कर लेते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं गैसेस के। नाउ किड्स, आपकी बुक में ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स दिए हैं। ये सॉलिड्स के हैं जो वेरी क्लोजली है, जो लिक्विड्स के हैं वो लूजली है, और गैसेस के हैं वो वेरी लूजली है। और उसके सामने उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। उसके सामने आपके एग्जाम्पल्स भी है, जैसे सॉलिड्स के सामने प्लांट्स है, पेंसिल है, चेयर है। फिर लिक्विड्स के सामने ऑयल है, जूस है, मिल्क है। फिर गैसेस के सामने है एयर फिल्ड इन ए बलून और फुटबॉल। इवन गैस, जो बलून के अंदर हम जो गैस फिल करते हैं उसके और बॉल के अंदर, तो वो भी एग्जाम्पल हो गया ना गैसेस का, बिकॉज उसके अंदर हमने एयर को फिल किया है, राइट। स्टीम कमिंग आउट ऑफ कीटल, मतलब कोई भी स्टीम बाहर आ रही है। हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम आती है, पता है। मम्मी कोई भी वेजी प्रिपेयर कर रही है तो उसमें से भी स्टीम आ रही है। कोई भी गरम गरम टी, कॉफ़ी है तो उसमें से भी स्टीम बाहर आती है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है? गैसेस का। क्लियर किड्स? सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, पार्टिकल्स, अरेंजमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स आई एक्सप्लेन्ड यू, राइट। आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल्स को सेट कर सकते हो, बट वो सही होने चाहिए। सो हियर वी कंप्लीट this session, right? In next session I am going to explain you about change of state, कि स्टेट में कैसे चेंज करते हैं और कैसे चेंजेस आते हैं। बट इसके साथ मैंने आपको PDF भेजी है, अच्छी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे अपने आप। दीदी ने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर एक्सप्लेन किया है, उसमें कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्राई टू राइट डाउन किसके पास डिफाइनाइट शेप है, किसके पास डिफाइनाइट शेप नहीं है। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। either I can ask draw arrangements of solids, liquids and gases। तो आपको उसके अरेंजमेंट्स ड्रॉ करने, जो भी सॉलिड्स है तो उसके क्लोजली पैक्ड है, इसके थोड़े से लूज है, इसके वेरी लूज है पार्टिकल्स, तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। डिफरेंसेस भी मैं आपको पूछ सकती हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत ही ईजी है। तो ट्राई टू कंप्लीट all the answers, okay? So till next session kids, bye.